इस दुनिया में धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के आधार पर ये मनसा में इंटरनेट के द्वारा मंथन चल रहा है तेजी से। On the basis of the battlefield of religions and actions in this world, churning is going on rapidly within the mind through internet. पहले पहले क्या निकलता है? What emerges first? है विष निकलता है। Poison. ये जो मोबाइल है, ये जो इंटरनेट है, जो नई उम्र की कलियां हैं, नए उम्र के नौजवान लड़के हैं, इनसे बिगड़ते जा रहे हैं। इन यंत्रों का उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, व्यभिचार की ओर जा रहे हैं या अव्यभिचारी बन रहे हैं। Are the blossoming birds, that is young girls and young boys of the new generation, being spoiled through these facilities like mobile and internet? Are these gadgets exerting a bad influence on them? Are they going towards adultery or are they becoming unadulterated? व्यभिचार की ओर जा रहा है नौजवान। The youth is going towards adultery. और जिस दुनिया का नौजवान व्यभिचार की ओर जा रहा हो, वैश्यालय की ओर जा रहा हो, तो दुनिया में वर्ण संकरता बढ़ेगी या घटेगी? And a world whose youth are going towards adultery, towards brothel, will there be less or more pollution of blood in that world? बढ़ती चली जाएगी। There will be more and more pollution. ऐसी ऐसी वर्ण संकरता जब बढ़ जाती है और सारा वातावरण विषैला बन जाता है। When such pollution increases, the entire atmosphere becomes poisonous. अभी देहभान बहुत बढ़ गया है। Now, body consciousness has increased a lot. इसलिए बताया अपने को कंट्रोल करना है। This is why it was said, you should control yourselves. बच्चे साइंस के साधनों में इतना फंस चुके हैं कि हरेक के हाथ में, हरेक के कान में क्या लगा रहता है। Children are so entangled in the means of science that what is in everyone's hand and everyone's ears? ये साइंस का साधन है या साइलेंस का साधन है? Students, mobile phones. Is this a means of science or a means of silence? मोबाइल के द्वारा देखें अपने जीवन में कि हम ईश्वरीय सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं या अपनी मस्ती की जिंदगी में ज्यादा लगे रहते हैं। Students, science. Check your life. Are we engaged more in the godly, that is, Ishwariya, divine service, or in enjoying our lives with mobile phones, with the TV? मोबाइल के द्वारा तौल करें 24 घंटे में। We must check it for 24 hours. ये अल्पकाल के साधन जो खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी, ऐसा तो नहीं हम उनके आदी हो गए। These temporary means which are going to end very soon, is it so that we have become habituated to them? मान लो क्लास में कोई की शिकायतें बार बार आ रही है कि ये सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं और उनके मोबाइल छीन लिए जाए। Suppose
Someone's complaints are repeatedly reported in the class about the fact that these ones watch serials, cinema, that is movies, they listen to dirty songs, watch blue films, and if their mobile phones are taken away, 80 साल तक अभी पढ़ाई हुई, बाप ने सौम्य रूप धारण किया या प्यार के अलावा कुछ और दिया बच्चों को? the studies have been going on for 80 years now. Did the father play a gentle role, or did he give the children anything else other than love? है? प्यार का सागर बनकर रहा। He remained the ocean of love. अभी तो बहुत थोड़ा टाइम बचा है बच्चों के लिए। Now, very little time is left for the children. ऐसे नहीं समझे 20 साल पड़े हैं। Don't think 20 years are left. 20 साल तो हैं ही नहीं बच्चों के लिए। There aren't 20 years at all for the children. बच्चों के लिए संपन्न बनने के लिए, संपन्न राजधानी में आने के लिए, जो राजधानी सुप्रीम बाप के द्वारा स्थापन होती है, उस राजधानी में आने के लिए 20 साल हैं। For the children to become complete, to come in the complete capital, the capital that is established by the Supreme Father, are there 20 years? है? 20 साल तो है ही नहीं। There aren't 20 years at all. अरे संपन्न दुनिया की राजधानी, ईश्वरीय राजधानी बनेगी तो दुनिया की राज्यों में, दुनिया के देशों में जो विदेशियों की, विधर्मियों की राजाइयां चल रही हैं, राजधानियां बनी हुई हैं, उनसे टक्कर कब होगी? Arey, when the capital of the complete world, the Ishwariya capital is formed, when will it clash with the kingships of the foreigners and Vidharmis, the capitals that have been formed in the kingdoms and countries of the world? Vidharmis, those who follow a religion opposite to the father's. बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? Do you receive kingship without a fight? मिलती है। Do you? हिस्ट्री क्या कहती है? What does history say? है? लड़ाई फिर राजाई। First fight and then kingship. जो जीतेंगे वो राजाई प्राप्त करेंगे। Those who win will receive the kingship. जो गीता में अर्जुन से कहा, God said to Arjun in the Gita, जीतेगा तो विश्व का राज्य भाग लेगा। if you win, you will receive a share of the kingship of the world. अगर लड़ते लड़ते शरीर भी छूट गया तो कम से कम स्वर्ग की राजधानी में आ तो जाएगा। If you even leave your body while fighting, you will at least come in the capital of heaven. स्वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? Will you come in heaven or not? आ जाएगा। You will. इसलिए अब ये साइंस के साधनों में फंसने का समय नहीं रहा। This is why it isn't the time to entangle yourselves in the means of science. अभ्यासी नहीं बन जाना है। You shouldn't become habituated to them. जो इतने साइंस के साधन बढ़ाते जा रहे हैं उनसे क्या करेंगे? उनसे साधना को बढ़ाएंगे। साधना उनकी बढ़ेगी या साधना में जीरो हो जाएंगे? What will human beings do with so many sadhan, that is, means of science, that they are increasing? Will they increase sadhana, that is meditation with it,
Will their sadhana increase or will they become zero in sadhana? साइंस के साधनों को यूज करते करते उनकी आदत पड़ती जाती है। People become habituated to, that is, dependent on the means of science, using them continuously. वो साधना में जीरो होते जाते हैं और तो They continue to become zero in sadhana. And what about you? तुम साइंस के साधनों को समझते हो कि आखिरी ये विनाशकारी है। You understand about the means of science, that they are destructive after all. ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड लिखना चाहिए You should write such response. कि साइंस से वास्तव में विनाश हो रहा है या नई दुनिया बन रही है। In reality, is destruction taking place through science or is the new world being established? साइंस के साधन जितने जितने बढ़ते जाते हैं, जितना जितना हम साइंस के साधनों को यूज करते जाते हैं, उतना उतना हमारी साधना ढीली पड़ती जाती है। Our sadhana becomes loose to the extent the means of science keep growing and we keep using them. ये एक नशा है, नेट का नशा। त्योहारों पर उपवास बड़ी आसानी से रख लेते हैं, वो भी डिजिटल उपवास नहीं कर पाते। खाने पीने का उपवास तो कर लिया, लेकिन उसके बाद दिन भर फोन पे ही लगे रहते हैं। यानी ज्यादातर लोग कुछ घंटों के लिए भी अपने मोबाइल फोन या डिजिटल गैजेट से दूर नहीं रह पाते। खाना छोड़ देंगे लेकिन फोन नहीं छोड़ेंगे। कभी आपने सोचा है कि उपवास के दौरान अपनी जीभ पर काबू रखना तो आसान है, लेकिन आज के जमाने में स्मार्टफोन पर चलने वाली इन उंगलियों पर काबू रखना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है डोपामीन। यह मस्तिष्क में बनने वाला वो केमिकल है जो आपको खुशी का एहसास देता है। जब आप स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामीन को रिलीज करने लगता है। अब क्योंकि डोपामीन से आपको खुशी का एहसास होता है, इसलिए आप अपने मोबाइल फोन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और आपको इसका नशा हो जाता है। ये जो दौड़ है, अंधी दौड़, ये कभी खत्म ना होने वाली इच्छाओं की तरह है और ये कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं डोपामीन से ही पैदा होती हैं। लेकिन जब आप ये सब कर लेते हैं तो भी अंदर का खालीपन आपका भरता नहीं है और आप फिर से ऐसा ही करने लगते हैं। फिर खुशी न ढूंढ पाने की ये निराशा तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी में बदल जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल फोन यूं ही उठाकर देखने लगते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर चाहे कोई मैसेज हो या ना हो। मोबाइल कितना देखें जिससे आंखों को नुकसान न हो, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एम्स के नेत्र रोग विभाग के मुताबिक पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन से ना चिपके और हर 20 मिनट में एक ब्रेक जरूर लें। विज्ञान की भाषा में आंखों की ये बीमारी मायोपिया कहलाती है, जिसमें आंखों का आई बॉल बड़ा होने की वजह से दूर की चीजें साफ साफ दिखने में परेशानी होती है। मायोपिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है और लंबे वक्त के बाद ब्लाइंडनेस यानी अंधे होने का खतरा भी रहता है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक जितनी बड़ी स्क्रीन होगी, परेशानी उतनी कम होगी। हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको किसी चीज पढ़ना है या कुछ काम करना है तो या तो लैपटॉप में करें जिसका स्क्रीन साइज बड़ा हो, या फिर टैबलेट में काम करें जिससे भी आपको थोड़ी दुविधा कम हो सकती है। आपकी आंखों की सेहत के लिए है रूल 20-20-20। अगर आपने 20 मिनट तक किसी भी स्क्रीन पर आंखें गड़ा कर रखी हैं, तो अब 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए, 20 सेकंड तक पलकें झपकाइए और फिर 20 फीट दूर देखिए और वहां फोकस कीजिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी बेहतर हो पाएगी।